अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, आज का टॉपिक है व्हाट आर टेक्निक्स फॉर राइटिंग लिटरेचर रिव्यूज़। इससे पहले हमने डिस्कस किया कि हाउ टू राइट द रिपोर्ट राइटिंग एंड थीसिस राइटिंग, एकेडमिक राइटिंग एंड व्हाट आर द स्टेप्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर टेक्निक्स for writing literature review. Literature review is important part in every thesis, in every research paper, in every academic writing. So we have to learn the basic steps of literature review. You're welcome in your beloved channel Study with Kola. Let's start today's video. So friends, basically, first of all we have to learn what is literature. The literature review is a critical look at the existing research that is significant to the work that you are carrying out. तो आप जो काम कर रहे हैं, जो आप लेके चल रहे हैं जो टॉपिक, तो इसके लिए वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज़ है जो हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज मौजूद है, उसको क्रिटिकली ओवरव्यू किया जाता है लिटरेचर रिव्यू में। To provide background information, to establish importance, to demonstrate familiarity, to crave out a space for future research. So this is very important to establishing your literature review and demonstrating what you are doing for the next scholars in the future. आपके काम से जो है दूसरे जो रिसर्चर्स हैं वो फ्यूचर में अपनी रिसर्च के लिए हेल्प आउट लेते हैं। Purpose of literature review. So, what are the characteristics of effective literature reviews? Outlining important research trends, assessing the strengths and weaknesses of existing research, identifying potential gaps in knowledge, establishing a need for current and or future research projects. तो ये थी गाइस इसकी खसूसियात हैं। पहली चीज़ क्या है? रिसर्च के जो ट्रेंड्स हैं उनको फॉलो करना, उनको आउटलाइन करना। फिर आपने स्ट्रेंथ है और जो वीकनेसेस हैं, जो खूबियाँ हैं, जो खामियाँ हैं, जो प्रेजेंट रिसर्च है उसमें आप उसकी लिमिटेशंस बताएंगे। फिर जो गैप्स ऑफ नॉलेज है, जितने पहले अगर किस टॉपिक पर काम किया गया है वो कब किया गया था, किस ईयर में किया गया है, ये आपने सारा बताना है। और किस तरह से आपकी रिसर्च जो है फ्यूचर रिसर्च के लिए हेल्प आउट कर रही है। तो ये जी इसकी खूबियाँ हैं या इसकी खसूसियात हैं। इसके बाद बात करते हैं स्टेप फॉर राइटिंग अ लिटरेचर रिव्यू। सो फर्स्ट इज प्लानिंग, सेकंड इज रीडिंग एंड रिसर्च, थर्ड इज एनालाइजिंग, four is drafting and revising. So these are the steps we have to discuss these steps one by one in this video. So be alert and understand what are these steps. Say in this picture we are going to elaborate what is basically the step. No, I am waiting for inspiration. Do you have any idea for your story यार? अगर आप किसी टॉपिक को सर्च आउट कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि आपके पास कोई आइडिया है। नो, आई एम राइटिंग फॉर इंस्पिरेशन. You can't just turn on creativity like for say we have to be in the right mood. What mood is that? Last minute panic. So you can't panic in the last minute. You have to make the plan. You have to make an idea. You have to research on your topic. You can't move without your planning. You have to choose which area you want to study. You want to research. Next, what is planning? What type of literature review am I writing? आपने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि किस तरह का जो लिटरेचर रिव्यू है आप लिख रहे हैं। प्लानिंग क्या है? Planning basically focus. What is the specific thesis, problem, or research question that my literature review helps to define? Identifying a focus that allows you to sort and categorize information. Eliminate irrelevant information. So in this planning आपने सबसे पहले अपना फोकस जो है क्लियर करना है, इसको कैटेगराइज करना है, इसकी फॉर्म्स बनानी है कि आपका जो है बेसिक जो है थीसिस का स्टेटमेंट क्या है, प्रॉब्लम क्या है, आपने किस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है और जो सारी इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको आपने अपने काम से बाहर निकाल देना है, किक आउट कर देना है। उसके बाद टाइप, व्हाट टाइप ऑफ लिटरेचर रिव्यू एम आई कंडक्टिंग? आप किस टाइप का लिटरेचर रिव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, उसमें थ्योरी कौन सी है, मेथडोलॉजी कौन सी इस्तेमाल की गई है,
पॉलिसीज क्या हैं, आया ये क्वांटिटेटिव है या ये क्वालिटेटिव है, तो ये जी आपका काम डिसाइड करने का, ये आपने खुद डिसाइड करना है। इसको कहा जाता है प्लानिंग, जो किसी भी काम की शुरू करने से पहले एकेडमिक में की जाती है। प्लानिंग स्कोप, what is the scope of my literature review, what type of sources am I using, academic discipline, what field am I working in. So आपने ये बात क्लियर करनी है कि कौन सी फील्ड पे आप काम कर रहे हैं, लिटरेचर पे, मेडिकल पे, इंजीनियरिंग पे, केमिकल पे, सॉफ्टवेयर पे, एनी field you are working on, you have to clear your goals first. Secondly, you have to source out all the references you are using in your academic work. Reflection, take a moment to answer each of the question in the planning section of your packet about a literature review. You are currently working on a plan or to work on. आपने जो भी काम करना है इसको आपने आंसर आउट करना है कि मैं ये सही प्लानिंग कर रहा हूँ या नहीं कर रहा. हाउ मैनी ऑफ द क्वेश्चन कुड यू आंसर, इसमें जितने भी क्वेश्चन आपने पूछे हैं कि आप उसको आंसर कर सकते हैं. व्हाट क्वेश्चन डिड दिस शॉर्ट एक्सरसाइज रेज फॉर यू, कौन से वो क्वेश्चन हैं जो इस एक्सरसाइज के लिए, इस काम के लिए उठ रहे हैं. So you have to clear all your questions. Reading and researching is very important in literature review. What materials am I going to use? आपने कौन से material जो है use करने हैं? You should have to clear reading and researching in detail. Collect and read material. Summarize sources. Who is the author? What is the author's main purpose? What is the author's theoretical perspective? Research methodology. Who is the intended audience? What is the principal point? Conclusion, thesis, contention or question. How is the author's position supported? How does the study relate to other studies of the problem or topic? What does the study add to your project? So these is रीडिंग एंड रिसर्चिंग. तो आपने अपने सारे काम के लिए रिसर्च करनी है, आप किस ऑथर को लेके चल रहे हैं, आपका थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव क्या है, आपकी मेथोडोलॉजी क्या है, आप किस ऑडियंस से बात कर रहे हैं, इज दिस पाकिस्तान और यूके और फ्रॉम अदर कंट्री. आपका जो है कंक्लूजन, आपके जो सारे क्वेश्चन हैं जो भी आपको सपोर्ट में यूज होंगे, रिलेटेड स्टडी जो है आपके प्रोजेक्ट के हवाले से, आपने उन सबको क्लियर करना है, फिगर आउट करना है और सारा कुछ जो है आपने पहले करके रखना है. दिस इज कॉल्ड रीडिंग एंड रिसर्चिंग इन लिटरेचर रिव्यू. एनालाइजिंग, हाउ डू आई असेस एग्जिस्टिंग रिसर्च. आप अपने जो एग्जिस्टिंग रिसर्च है उसको किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं. 4 एनालिसिस टास्क ऑफ द लिटरेचर रिव्यू. 4 टास्क होते हैं जो लिटरेचर रिव्यू में इस्तेमाल किए जाते हैं. पहली चीज जो है समराइज. आप समझते हैं कि समराइज करना, किसी चीज को मुख्तसर करना. सिंथेसिस, उसके बाद क्रिटिक, उसके बाद कंपेयर. तो ये जी इसके 4 जो है एनालिसिस के टास्क हैं, ये 4 हैं आपको स्क्रीन पे. तो जी मेरे प्यारे साथियों, एग्जाम्पल ऑफ कंपैरिजन एंड क्रिटिक इज इन योर स्क्रीन. जिस तरह से ये ऑथर क्लियर है, इसका ईयर क्लियर है और कौन सी बुक से लिया गया, ये सारी जो डेट्स इस तरह से बयान की गई हैं, एंग्लो अमेरिकन डिस्कोर्स. सो दिस इज लाइक अ क्रिटिक, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है. ड्राफ्टिंग, व्हाट एम आई गोइंग टू राइट. ये आपने ड्राफ्ट बनाना है कि मैं क्या लिखने जा रहा हूँ. तो इसको आपको क्लियर करना है इस चीज़ को. ड्राफ्टिंग एन ओवरव्यू टू हेल्प योर अप्रोच योर ड्राफ्ट इन अ मैनेजेबल फैशन. दिस सेक्शन एड्रेसेस द फॉलोइंग टॉपिक्स. अगर आपने ड्राफ्टिंग करनी है तो आपने इस सेक्शन को इस तरह से लेकर चलना है. एक्सिजेंसी, थीसिस स्टेटमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन. Citations is also there. You have to make your thesis statement for your research, for your academic writing. You have to organize your material. You have to put a solid and organized introduction and conclusion, and also you have to add references in there. This is called citation, text citations. Thesis statement. The thesis statement offers an argument about the literature. It may do any of or a combination of the following. जो thesis statement है वो आपका जो argument है उसकी एक दलील है जो आपने पेश कर रहे हैं. ये क्या है? Often an argument and critical assessment of the literature. For example, you have to express your topic and what are you claiming in this thesis. You should be clear about your thesis statement. This is related to your topic and you have to prove your topic.
Provide an overview of currently scholarly conversation. You can provide scholarly conversations, references, books, articles also in your thesis, but you have to put proper citations. Point out gaps or weaknesses in the literature. You have to point out how many years gap in this research. Relate the literature to the larger aim of the study. You should relate the basic aim of the study कि आपके रिसर्च से क्या किसी को बेनिफिट होने वाला है, नहीं होने वाला, और इसके फ्यूचर क्या रिजल्ट है. कंक्लूजन. समराइज द मेन फाइंडिंग ऑफ योर रिव्यू. तो आप इसमें समराइज करेंगे जो भी आपने फाइंडिंग्स की हैं. प्रोवाइड क्लियर. उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे कि आपने क्या इसमें अचीव किया, क्या वीकनेसेस थी. इम्प्लीकेशंस फॉर फ्यूचर रिसर्च, किस तरह से फ्यूचर रिसर्च में बेनिफिट है या किस तरह से हो सकता है. कनेक्शंस टू द करंट स्टडी, और करंट स्टडी के साथ आपने इसके कनेक्शंस भी बना रखने हैं. एग्जाम्पल कंक्लूजन. इन दिस picture you can see how do you summarize your conclusion. You have to add proper citations also in there, like this book and year, like that. Citing sources. If it's not your own idea and not common knowledge, अगर आपका वो खुद का आइडिया नहीं है, वो कॉमन नहीं है, तो you have to document it. How you can document it? Paraphrase key ideas, use quotations, introduce quotations effectively, use proper in-text citation to document the source of ideas, maintain accurate bibliographic records. You have to use proper quotations and rephrase the idea, meaning you have to write in your own words. You have to proper cite the work. You have to document the proper sources in your thesis or research. You have to maintain the bibliographic records in the reference section also. Citing sources, things to avoid. What you have to avoid during citations, you have to avoid the plagiarism. This is the first thing. Plagiarism means to copy anything. You in research you can't copy anything. Irrelevant questions, you can't add irrelevant questions that are not relating with your research. Unintroduced quotations, इससे भी आपने अवॉइड करना है. ये जी बेसिक असूल हैं साइटेशंस के. इसके अलावा जो है जी, कोटिंग में और पैराफ्रेजिंग में क्या डिफरेंस है. कोटिंग में जी आप इस तरह से प्रॉपर इसके देंगे ईयर्स और आप साइटेशंस करेंगे. पैराफ्रेजिंग में आप जो अपने आइडिया भी कन्वर्ट करेंगे, लेकिन फिर भी आपको जो है इसकी साइटेशंस देनी पड़ेंगी. एकेडमिक राइटिंग में चाहे आप कोटिंग करते हैं, आप बिल्कुल वैसे ही जो सेंटेंसेस लिखे हैं उसको कॉपी पेस्ट करते हैं, तब भी आपको कोटिंग इसकी साइटेशंस देनी ही पड़ेगी. और अगर आप पैराफ्रेजिंग करते हैं तब भी आप इसको साइट करेंगे बाकायदा. तभी आपका काम जो है एक ऑथेंटिक शक्ल में अप्रूव होगा और माना जाएगा और उसकी जो है प्रॉपर रिस्पेक्ट की जाएगी. ये जी कोटिंग और रेफरेंसेस है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा. Revising, how can I fine tune my draft? Some tips on revising. Title, introduction, in title. अगर हमने सारा जो है हमने पढ़ा तो एंड पे हम ये टिप्स देख लेते हैं कि रिवाइज आप किस तरह से कर सकते हैं. पहली चीज, इज माई टाइटल कंसिस्टेंट विद द कंटेंट ऑफ माई पेपर. क्या मेरा टाइटल वाकई ही सूटेबल है जो मैं पेपर कर रहा हूँ, या मैं थीसिस कर रहा हूँ, या मैं एकेडमिक राइटिंग कर रहा हूँ. तो ये सवाल आप खुद से पूछेंगे. इंट्रोडक्शन, डू आई अप्रोप्रिएटली इंट्रोड्यूस माई रिव्यू. क्या मैंने अपना रिव्यू अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाया. थीसिस, डज माई रिव्यू हैव अ क्लियर क्लेम. क्या मेरा जो क्लेम है वो ठीक है, मेरा हाइपोथेसिस, मेरी थीसिस स्टेटमेंट क्लियर थी. बॉडी, इज द ऑर्गेनाइजेशन क्लियर. हैव आई प्रोवाइडेड headings actually, subheadings actually, topic sentences. Have I clearly indicated the major ideas of each paragraph. क्या मैंने जो है प्रॉपर इंडिकेट किया है, मैंने अपने काम को सही से बयान किया है या नहीं किया. ट्रांजिशंस, डज माई राइटिंग्स फ्लो. क्या मेरी राइटिंग में एक तसलसल है या सेंटेंसेस में फ्लो नहीं है.
तो ये भी आपने देखना है। कंक्लूजन, डू आई प्रोवाइड सफिशिएंट क्लियर, क्या मैंने सफिशिएंट मटेरियल तो प्रोवाइड किया है ना, इसमें सफिशिएंट कंक्लूजन तो दिया है। स्पेलिंग एंड ग्रामर, आर देयर एनी मेजर स्पेलिंग्स और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, आप अपने जो भी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं उनको रिमूव करेंगे, इसको प्रूफ रीडिंग कहा जाता है। ये एक अलग से टॉपिक है, इस पर भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपने बहुत ही इंजॉय की होगी और लर्न किया होगा। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।